Swami Vivekananda has said, all power is within you. You can do anything and everything. As today marks 127th anniversary of Swami Vivekananda's historical address at the World Parliament of Religions, I wish you all a very happy Universal Brotherhood Day. Good afternoon, everyone, respected faculty members, and my dear friends. We are pleased to have with us today Mr. Pramod Kumar, founder and director of Divya Wellness. Pramod ji is a happiness researcher, emotional intelligence speaker, mind, body, and spirit expert, entrepreneur speaker, a leadership trainer, performance and change expert, a counselor. He conducts workshops all across India for corporate students, parents, and teachers. His workshops have been benefited many individuals in managing their stress and leading healthy and balanced life. Being an acclaimed speaker at eminent organizations such as Glenmark, Doon Public Valley School, Denso India, and many more, he has previously also been a physics lecturer of huge repute and knows his ways around students to help them overcome their problems with ease. Today, he is with us to interact and speak on his views. On behalf of faculty, staff, and students of AIAS, Amity University, Noida, I welcome you, sir. We are enthralled to interact with you. Please take over the floor. Thank you, sir. Thank you so much. Good afternoon, champions. I'm talking with the youth power, and it's an honor and privilege to talk with the youth because I know youth power is a main power, and youth power is main power of India also because our country is a youth country, and more than 65% are youth in India. So it's my honor and privilege. I feel very exciting, and I always excited to talk with the professionals like you. Friends, आज आपके साथ जो बातें मैं करूँगा, they are very important. First of all, I am B.K. Pramod Kumar, as introduced by Mr. Gupta. I am talking about ethics and values because without ethics, without values, we can't go anywhere. In 1997, I was qualified for the IIT, but due to some challenges, I was unable to continue that. And after that, become a physics lecturer, 14 year my career, I did physics lectures in two colleges and running two coaching institutes also. But currently, I am running my own company and I am running business in network distribution and lot many things. सो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ जितनी बातें करूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं लाइफ में। जब वैल्यूज एंड पावर्स को हम सही प्रकार से समझ लेते हैं, सो लाइफ गोइंग अ लॉन्ग वे, गोइंग अ लॉन्ग वे। आई एम ब्रह्मा कुमार एंड लास्ट 27 years आई एम डूइंग राज योगा मेडिटेशन। यस, सो आज हम आपके साथ जो बातें करेंगे, आई एम गोइंग टू शेयर स्लाइड्स विद यू। विद स्लाइड्स वी टॉकिंग अबाउट एथिक्स, वैल्यूज एंड मच मोर। ये सेशन आपको लाइफ में बहुत बड़ा विजन देगा, एक ऐसे कंट्रोल देगा आपको आपकी लाइफ में कि यू बिकम मोर इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन ऑन दिस अर्थ। आज की डेट में हम प्रोफेशनली बहुत कुछ चीजें करते हैं, वी आर द प्रोफेशनल्स और गोइंग टू बी अ बिग प्रोफेशनल्स इन अवर लाइफ, ऑलवेज ट्राइंग टू बिकम अ बिग प्रोफेशनल। और बहुत ही इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है कि लिव लाइफ लाइक अ प्रोफेशनल। बट हु इज प्रोफेशनल? हु आर द प्रोफेशनल्स? हम उन लोगों को प्रोफेशनल्स बोलते हैं हु आर द मास्टर इन देयर कोर स्किल्स। वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ, आप अपने लाइफ में जो भी कुछ कर रहे हैं, है ना, आप उसके कितने मास्टर हैं? आपकी चैंपियनशिप इन योर कोर स्किल, जो भी आपका एजुकेशन पैटर्न है, जो भी कैरियर आप अपना डिजाइन कर रहे हैं, उस कैरियर को आप कितना ब्यूटीफुली डिजाइन करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि उस कोर स्किल के लिए जो कॉन्सेंट्रेशन मुझे चाहिए, जो वैल्यूज पावर मेरे को चाहिए, क्या वो मेरे पास है? द सेकेंड थिंग इज विनिंग एटीट्यूड। मेरा एटीट्यूड क्या है टू लर्न अबाउट। मैं एक बात शेयर करना चाहूंगा आप सबके साथ में। मैं बहुत सारे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूं और मैं हमेशा उनसे एक सवाल पूछता हूं कि आप अपनी लाइफ में अपने गोल के लिए कितने कॉन्सेंट्रेट हैं, है ना? आप में से किस किस का कॉन्सेंट्रेशन 100% है? कोई मुझे बताएगा? कोई बताना पसंद करेगा? अनम्यूट करिए खुद को। क्या आप में से किसकी कॉन्सेंट्रेशन 100% है? आप में से किसी कॉन्सेंट्रेशन 100% है? कॉन्सेंट्रेशन 100%? सर
Sir, nobody can actually say if they have a 100% concentration, because right now the youth is very much distracted by a lot of things. So we cannot say that we have 100% concentration or not. सो हम सोचते हैं कि हमारी कॉन्सेंट्रेशन 100% नहीं है, बट इट्स अ बिग मिथ, इट्स द बिगेस्ट मिथ इन लाइफ। हम सबकी कॉन्सेंट्रेशन 100% है। मैं आपसे कुछ बातें कहूंगा जो आपको बताएंगी कॉन्सेंट्रेशन 100% कैसे है। आप अपने आप से एक सवाल पूछ के देखिए कि आप जब भी कोई वो काम करते हैं जो आपको बहुत पसंद है, वॉट एवर यू लाइक द मोस्ट, कभी आपका ध्यान भटका है? यू आस्क टू योरसेल्फ। जब हम कोई मूवी देख रहे होते हैं जो हमें बहुत पसंद होती है, हम जाते हैं, देखते हैं, 3 घंटे तक हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं भटकता है। कोई गेम खेलना हमें बहुत पसंद होता है, कोई नोवेल पढ़ना हमें बहुत पसंद होता है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट करना हमें बहुत पसंद होता है, कोई मैथमेटिक्स चैंपियन जीनियस होता है, कोई इंग्लिश में बहुत कॉन्सेंट्रेट होता है, कोई कहानियों में कॉन्सेंट्रेट होता है। जिस चीज को आपका दिल बहुत चाहता है, जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, आपका ध्यान 1 मिनट के लिए भी नहीं भटकता। सो प्रॉब्लम कॉन्सेंट्रेशन में है या प्रॉब्लम इंटरेस्ट में है? Actually, problem is in interest, not in concentration. Concentration always follow the interest. जैसा अभी आपने पीछे कहा कि आज का यूथ बहुत सारी चीजों में डिस्ट्रैक्ट है, बिकॉज वो इंप्रेस हो जा रहा है चीजों से, वो इन्फ्लुएंस हो जा रहा है चीजों से, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं भटक रही है, उसके इंटरेस्ट डाइवर्ट हो रहे हैं। और जब हमारे इंटरेस्ट डाइवर्ट होते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज फॉलो योर इंटरेस्ट, योर बर्निंग डिजायर्स। एक्चुअली जो चीजें आपकी ज्वलंत इच्छाएं बन जाती हैं, योर कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज वहां चली जाती है। आप देखो, एक बच्चा क्रिकेट खेलना अगर पसंद करता है, वो सुबह शाम तक क्रिकेट खेल लेता है, भूख प्यास में भी करता रहता है, उसे भूख भी नहीं लगती, उसे प्यास भी नहीं लगती है। So we all have these qualities, but in different fields. कोई गेम में वो पैशन दिखा रहा है आज, कोई एजुकेशन में वो पैशन दिखा रहा है, कोई डिफरेंट काइंड की लीडरशिप स्किल्स में वो पैशन दिखा रहा है। एवरीबडी हैव सम काइंड ऑफ पैशन। वो बुरे पैशंस भी हो सकते हैं, उनके लिए किसी के लिए आतंकवाद पैशन हो सकता है ना, वो उसके लिए बहुत कॉन्सेंट्रेट है। सो कॉन्सेंट्रेशन कभी कम और ज्यादा नहीं होती है, ये गॉड गिफ्टेड चीज है, ये हम सबके पास बराबर होती है। लेकिन हम कंफ्यूज हैं, बिगेस्ट मिथ के शिकार हो गए, और हम जगह जगह उस चीज को ठीक करने के लिए जा रहे हैं जो कभी कम होती ही नहीं है। Concentration is always 100%. Interested are diverted. So understand very carefully. मैं इसके ऊपर जाऊंगा. So be a master in your core skill. But check first. क्या मेरी जो कोर स्किल मैं करने के लिए जा रहा हूं, ये मेरा पैशन है? क्या ये रियल में मेरा इंटरेस्ट है? Then I need to work on my attitude on the regular basis. Exactly same as I work on my attire and the outer things. Always we people work on the external personality, but we need to understand your internal reflect by your external. External is only a presentation, but the preparation is your internal. आपका जितना जो कुछ भी है, अगर इंटरनल में, ये दिस इज अ स्लाइड जो आपको बहुत कुछ बता रही है। आपको ऊपर जो दिख रहा है दैट इज योर स्किल, बट जो अंदर दिख रहा है दैट इज योर एटीट्यूड। योर एटीट्यूड क्या है? आपका एटीट्यूड ऑफ लर्निंग क्या है? आपका एटीट्यूड ऑफ प्रेजेंटिंग क्या है? आपके अंदर में आप अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं? आपका सेल्फ इमेज क्या है? आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है? इट विल डिसाइड कि आप अपनी स्किल के साथ क्या करेंगे। वरना आप देखो, बहुत सारे लोग बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल होते हैं, बट वेरी लो लेवल ऑफ देयर इमोशनल स्टेट। दैट्स व्हाई एन आईएएस डूइंग सुसाइड कमिट, एक आईएएस सुसाइड कमिट कर लेता है फ्रॉम द जनरल कैटेगरी आल्सो। हाउ इट्स पॉसिबल? बिकॉज उसके पास अपना इमोशनल कंट्रोल नहीं है। आप इंटेलेक्चुअली कितने हाईएस्ट हैं वो मायने नहीं रखता है, बट आप इमोशनली कितने स्टेबल हैं ये बहुत मायने रखता है इन योर सक्सेस। व्हाट आर यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। लाइफ में आप कभी चेक करना, आपकी स्किल लर्निंग में अगर कोई सबसे बड़ी रुकावट है, द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल इन द लर्निंग इज इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, इमोशनल डिस्ट्रैक्शंस। आप कहां पर इंप्रेस हो जा रहे हैं, आप कहां पर इंटरेस्टेड हो जाते हैं। मैं हमेशा इन बातों को बहुत कैटेगराइज भी करता हूं। इंप्रेस मीन व्हाट? आई एम प्रेस बाय समवन, समथिंग। Impress, I am pressed by something, because कोई दूसरी चीज मुझे ओवर पावर कर रही है। That's why I am impressed towards that. Interested इस मतलब मेरा इंटरनली अरेस्ट हो चुका है किसी चीज के द्वारा। I am internally arrested by something, some people, some person, anything else.
So if I'm impressed by someone or I'm interested in something, then I get distracted from my goals. That's very important. So I need to understand, work on my attitude. Because फाउंडेशन जितनी सॉलिड होगी, आप याद रखना, बिल्डिंग उतनी ही सॉलिड होगी. यूएस में एक बिल्डिंग बनी जो कि 80 मंजिल की बिल्डिंग है, 80 माइल्स है. अभी उस 80 मंजिल की बिल्डिंग को बनने में टोटल टाइम लगा 16 ईयर्स, 16 साल का वक्त लगा. लेकिन आपको पता है उसकी फाउंडेशन कितने साल में बनी? 11 साल लगे उसकी फाउंडेशन बनने में, 11 ईयर्स. और अगले 5 साल में 80 मंजिल बन गए. 11 साल तक कुछ दिख नहीं रहा था जमीन से ऊपर. सो लाइफ में जब आप किसी बड़े मकसद के लिए जाते हैं, व्हेन यू अप्रोच समथिंग बिग, तो आप याद रखना आपका इंटरनल उतना ही सॉलिड होना चाहिए. आप लोअर इंटरनल के साथ कभी भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए प्रिपेयर नहीं हो सकते हैं. इफ यू वांट टू अचीव द बिग थिंग्स इन योर लाइफ, then big responsibilities come along the way, and to represent the big responsibilities you need to work within. इंटरनल पे काम करना पड़ेगा मुझे. आप अपने आप से पूछ के देखिए, एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल में, एक फेलियर प्रोफेशनल में कहां अंतर होता है? क्या रिसोर्सेज में डिफरेंस आता है या वैल्यूज में डिफरेंस आता है? आप सारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो भी अभी अपना एजुकेशन के लिए आप कर रहे हैं, आप अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्यों क्लास में एक बच्चा टॉपर होता है, क्यों एक लोअर कैटेगरी में जाता है, क्यों एक हाईएस्ट परफॉर्मर बन जाता है, क्यों एक लोएस्ट परफॉर्मर बन जाता है, जबकि आपका कॉलेज सेम है. यू हैव द सेम कॉलेज, यू हैव द सेम रिसोर्सेज, सेम प्रोफेसर्स, सेम बुक्स, सेम एनवायरमेंट. व्हाई वन पर्सन परफॉर्म बेटर देन द अदर? ओनली द डिफरेंस इज वैल्यूज, योर कमिटमेंट, योर वर्क एथिक्स, your concentration, your honesty, your dedication, your determination create the difference between the higher and the lower, between the winner and the loser. So you need to check the values within you, and no science till today can make your values better. नो साइंस. आज तक मैथ्स में कोई फॉर्मूला बना है कि मैथ का फॉर्मूला आपके अंदर लगा दिया जाए, साइंस की कोई रिसर्च लगा दी जाए, या केमिस्ट या बायोकेमिस्ट ने कुछ ऐसी दवाई बना दी हो कि इंजेक्शन लगा दिया जाए, आपकी कॉन्सेंट्रेशन अच्छी हो जाएगी, आपका हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, एंड आपका इमोशनल डिस्टर्बेंस खत्म हो जाएगा, एंड यू आर वेरी मच स्ट्रेस्ड एंड एंजाइटी आपको हो रही है, एंड दे कैन कंट्रोल बाय एनीथिंग एल्स? नथिंग इज देयर. दैट इज ओनली टू अंडरस्टैंड यू. That's why जब विवेकानंद जी एक बार रामकृष्ण परमहंस के पास गए और जाके कुटिया का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने पूछा, है ना, अंदर से आवाज आई रामकृष्ण परमहंस जी की कि कौन? तो बाहर से बोलते हैं, यही जानने तो आया हूं कि मैं कौन हूं. So that's important. क्या आप खुद को जानते हैं? आप अपने आप को किन चीजों से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो आपने एक्वायर्ड की हैं या जो आप रियल में हैं? एक टर्म है बी नाइस or be really nice. So are you nice or are you really nice? What is the difference between the nice and the really nice? Nice means I am nice till situation is in my favor. I will nice. But as my situation going against me, then I become bad. Or I always blame the situation. I always blame the people. I am always blame the situations. I always blame the resources. No matter. The bad resources make a great hero within you. आप चेक करो, महात्मा गांधी जी के सामने कितनी बड़ी समस्या थे अंग्रेज. दुनिया उसको देख रहे थे कि अंग्रेज उनके लिए समस्या थे, लेकिन अंग्रेज ही उनके लिए अपॉर्चुनिटी थे. फॉरेनर्स आर द अपॉर्चुनिटी टू द महात्मा गांधी. अगर आज फॉरेनर्स नहीं होते, महात्मा गांधी को कौन जानता? महात्मा गांधी को आज हम इसलिए नहीं जानते कि उनकी प्रोफेशनल स्किल एडवोकेसी थी. महात्मा गांधी को हम इसलिए जानते हैं कि उन्होंने कितना सर्व किया सोसाइटी को, क्या त्याग किया उन्होंने सोसाइटी के लिए. That's very important. Symbol of Mother Teresa. Why she is the symbol of love? Symbol of love. Why? क्यों उसकी अर्थी के पीछे 1 करोड़ लोग थे? इसलिए कि वो बहुत रिच थी या बहुत सुंदर थी या कुछ बहुत ऐसा था? No, nothing else. External things नहीं थी, but उसका internal unconditional love to the people, to the society. उसने उसको बनाया दुनिया के लिए प्यार के योग्य, इसलिए करोड़ों लोग उसके अर्थी के पीछे थे जब उसने दुनिया को छोड़ा. हम क्या ऐसा कुछ कर रहे हैं अपनी जिंदगी के अंदर, प्रोफेशनली, पर्सनली, सोशली, स्पिरिचुअली, कि दुनिया हमें याद रख सके? दैट्स इंपॉर्टेंट. इट विल रिफ्लेक्ट बाय योर एटीट्यूड. एंड व्हेन यू गोइंग इन योर लाइफ एज अ प्रोफेशनल वे, देन 2 kind of skills you will using along the way. One is your core professional skill, whatever you learn in your education pattern.
your maths, your science, whatever, जो whatever studies you are going through, so वो आप वहाँ पर सीख रहे हैं, and you learn a bit because you are in a very good environment. You learn in a Amity, which is one of the best institution in India or abroad. Whatever I say, but important is along with the professional skill, are you having the soft skills? Because without having the soft skills, आपकी रिलेशनशिप कभी बेटर नहीं हो सकती है। और विदाउट गुड रिलेशनशिप क्या फायदा है? आज आप जो कर रहे हैं वो रिश्तों के लिए कर रहे हैं, जो करेंगे वो रिश्तों के लिए करेंगे। और वो रिश्ते कोई भी हो, आपका खुद के साथ रिश्ता हो, आपका नेचर के साथ रिश्ता हो, आपका फैमिली के साथ रिश्ता हो, प्रोफेशनल वर्क प्लेस के साथ रिश्ता हो, आपका गॉड के साथ रिश्ता हो, कोई ना कोई रिलेशन है। मैं हमेशा कहा करता हूं अपने टॉक्स के अंदर, यू कैन एक्सपीरियंस पीस अलोन। आप अकेले हैं, आप शांति का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट यू कांट एक्सपीरियंस लव विदाउट हैविंग रिलेशनशिप्स। अगर आपके पास रिलेशंस नहीं है, चाहे आपकी माँ है, पिता है, भाई है, दोस्त है, वॉट एवर काइंड ऑफ रिलेशंस यू हैव, इफ यू हैव रिलेशन देन यू कैन एक्सपीरियंस लव, बिकॉज लव नीड टू। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी नीड सॉफ्ट कोर स्किल्स, है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, ट्रस्टवर्दीनेस, एंड इससे हमारे पास में क्या चीज होगा? ये सॉफ्ट स्किल्स मेक एक्सपर्ट अस इन द पीपल स्किल्स। आज दुनिया में लोग बहुत सारी स्किल्स में एक्सपर्ट हैं, लेकिन पीपल स्किल में नहीं। और इफ यू आर नॉट एक्सपर्ट इन द पीपल स्किल, तो आप कभी भी टीम लीड नहीं कर सकते हैं। और इसके बारे में कुछ और बातें बाद में भी आपके साथ करूंगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एटीट्यूड के बारे में क्या कहा है? वीकनेस ऑफ एटीट्यूड बिकम्स वीकनेस ऑफ योर कैरेक्टर। और याद रखना, दुनिया में कहा जाता है दोस्तों, अगर मेरा कैरेक्टर कमजोर पड़ गया तो मैं संपूर्ण खत्म हो जाऊंगा। हमने दोस्त खोए, बहुत कुछ खो दिया, पैसा खोया, कुछ नहीं खोया, हमने हेल्थ खोई, बहुत कुछ खोया, लेकिन अगर कैरेक्टर खोया तो हमने सब कुछ खो दिया। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, आवर वैल्यू इज डिस्ट्रॉयड। एंड टू मेक आवर एटीट्यूड बेटर, या आवर एटीट्यूड को हमें जज करना हो कि मेरा एटीट्यूड कौन सा एटीट्यूड है, इसके लिए आई नीड टू अंडरस्टैंड दिस स्लाइड। आई नीड टू अंडरस्टैंड माई परसेप्शंस अबाउट द सिचुएशंस। Situations drive me, or I control the situation. In today's scenario, you just see about the COVID-19. COVID-19 is a situation for many people, and many people are very much puzzled through the COVID-19. क्या होगा, कैरियर का क्या होगा, जिंदगी खत्म हो गई है, घर में बंद हो गए हैं, and people are stressed, people are depressed. Lot many people come to me due to depression. They are in the fearing zone. They are in very sadness zone. Why, man? Just you think about, every big situation create big heroes. So why you think कि situation आपको हार्म कर सकती है? Why don't you think कि आप situation को convert कर सकते हैं एक opportunity के अंदर? Why don't you think so? अब यही चीज डिसाइड करेगी, you have a losers mindset or you have a winners mindset, है ना? Losers और winners के अंदर resources का डिफरेंस नहीं होता है फ्रेंड्स। उनके अंदर डिफरेंस अगर कुछ होता है तो डिफरेंस इज ओनली द माइंडसेट, द परसेप्शन। व्हाट इज दिस? अगर मेरा परसेप्शन प्रॉब्लम्स वाला है, मतलब सिचुएशन आई, इफ आई टेक सिचुएशन एज अ प्रॉब्लम, अरे क्या समस्या आ गई है, क्या मुश्किल हो गया है, ये वो फलाना, हम बहुत कॉम्प्लिकेट करके सोचना स्टार्ट कर देते हैं और हम अपने माइंड को ये बता देते हैं, बेटा तू सॉल्यूशन सोचने के लायक नहीं है, यू आर नॉट एनफ क्रिएटिव टू थिंक अबाउट द सॉल्यूशन। बट एक बात सोच के देखो, दुनिया का हर बिजनेस एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही है। सर्दी का सॉल्यूशन आपकी जैकेट, आपका कोट है। गर्मी का सॉल्यूशन आपका एसी है। अगर गर्मी ना होती तो एसी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। आपकी जर्नी का सॉल्यूशंस वो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो प्लेन है, चाहे वो कार है, चाहे वो सिस्टम्स हैं। जस्ट टू अंडरस्टैंड इट। लाइफ में कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तभी बिजनेसेस दुनिया के अंदर हैं, तभी अपॉर्चुनिटीज दुनिया के अंदर हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स दुनिया के अंदर हैं। प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होनी बंद हो जाएंगी दुनिया के अंदर। सो लाइफ में मेरा परसेप्शन क्या है, मेरा एटीट्यूड क्या है अबाउट द थिंग्स। इफ वी हैव अ लूजर्स एटीट्यूड, लो सेल्फ इमेज, इट मींस आई सी एवरी सिचुएशन इज अ प्रॉब्लम। थोड़ा सा बेटर एटीट्यूड हो जाएगा, कुछ अच्छा लर्न करेंगे, आज आप ये सेशन अटेंड करेंगे, इसके बाद में हो सकता है कुछ थोड़ा सा आप में ऐड होगा, तो दैट बिकम अ ऑब्स्टेकल। रुकावट है, आई कैन क्लियर इट, आई कैन ओवरकम इट, बट और बेटर होगा। सो आई कैन सी द अपॉर्चुनिटी इन द एडवर्सिटी, बिकॉज एवरी एडवर्सिटी है द सीड ऑफ अपॉर्चुनिटी। हमने एक कोट सुना होगा सभी ने, हर मुश्किल के अंदर मौका छिपा हुआ है। सवाल यह है, आप मुश्किल को देख रहे हैं या मौके को देख रहे हैं?
कुछ लोग आज इसे मुश्किल के रूप में देख रहे हैं, कुछ लोग आज इसी को मौके के रूप में देख रहे हैं। एक बार ऐसा ही हुआ, टाटा क्या कहते हैं, बाटा जो शूज बनाती है कंपनी, उसने अपने 2 एम्प्लॉयज को चूज किया एक प्लेस को जाकर के विजिट करके सर्वे करने के लिए। पहले एक को भेजा, वो वहां पे गया, उसने देखा कि किसी के पास पैरों में चप्पलें नहीं है, जूते नहीं है, और लोग बस ऐसे ही घूम रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, सबके पास ही ऐसा ही हाल है। और वो अपना वहां से सर्वे करने के बाद विजन कंपनी को देता है, सॉरी सर, यहां पे मत खोलिएगा कोई भी शोरूम, वरना फेल हो जाएगा, यहां तो कोई चप्पलें पहनता ही नहीं है, कोई चप्पलें पहनता ही नहीं है, कोई जूते पहनता ही नहीं है। लेकिन दूसरा जो एम्प्लॉयर था, ग्रेट परसेप्शन उसके पास में था, वो जब गया, उसने सर्वे किया, किसी के पास चप्पलें नहीं है, उसने कैसे डिस्क्राइब किया, सर जल्दी से ट्रक भर के चप्पल जूते भेज दीजिए, क्योंकि यहां पर किसी के पास पहनने के लिए चप्पल और जूते ही नहीं है। They don't have slippers and shoes to wear. So kindly आप यहां पे खोलो शोरूम्स। सो सवाल क्या है, आप नीड को किस तरह से देख रहे हैं, आप किसी को देख कैसे रहे हैं, वो आपको एनर्जी देगा, वो आपकी क्रिएटिविटी को ऊपर निकाल के लेकर के आएगा, तब आप लाइफ में वो कर पाएंगे जो भी आप करना चाहते हैं। सो सबसे पहले अपना पैशन फाइंड करना है, कंसंट्रेशन आपके पैशन का पीछा करने वाली है, और आपको उस पैशन के लिए मोर क्रिएटिव एंड मोर एनर्जेटिक हो जाना है। नेक्स्ट, थोड़ा सा अगर मैं और आगे जाता हूं तो और बेटर जब सेल्फ इमेज हो जाएगी, आई विल टेक एज अ टेस्ट। और जब भी हम किसी बड़े टेस्ट को पास करते हैं तो बड़े रिवार्ड हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। पियोन से टफ टेस्ट होता है आईएएस का, बट आईएएस के रिवार्ड्स भी बड़े ही होते हैं, है ना। अब कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पियोन की प्रिपरेशन से आईएएस बन जाऊं। तो आप सब भी याद रखना, आप कभी ऐसा नहीं हो सकता कि जो टॉपर मेहनत कर रहा है और मैं एवरेज मेहनत करके टॉपर बन जाऊं। इट कांट पॉसिबल इन एनी एरिया। सो इफ यू वांट टू गोइंग टू बिग इन योर लाइफ, तो आपको वही मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। आप जब हायर रिवार्ड्स के लिए मेहनत कर रहे हो तो हायर डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन यू नीड। अब इससे भी ऊपर कौन होते हैं, जो हर तूफान को तोहफा समझते हैं, है ना। हर मुश्किल मेरे लिए एक तोहफा है, मेरे लिए एक बहुत शानदार मौका मेरी जिंदगी अंदर क्रिएट हुआ है, आई विल कन्वर्ट इनटू अ गिफ्ट। और इसी को कहते हैं विनर्स एटीट्यूड। विनर्स कभी भी किसी भी चीज को मुश्किल के रूप में नहीं देखते, गिफ्ट के रूप में देखते हैं। अब आपको अपने आप को चेक कर लेना है, रेट योरसेल्फ, अंडरस्टैंड केयरफुली। अगर आप लाइफ में कुछ भी बड़ा पाना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बिग इन योर लाइफ, सो यू नीड एनफ डिसिप्लिन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू क्रिएट द डिफरेंस बिटवीन अ फेलियर एंड सक्सेस इज डिसिप्लिन। आपके लाइफ में अगर डिसिप्लिन है, आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। एक बात और समझनी होगी हमें कि डिफरेंस हमें समझना पड़ेगा अचीवमेंट और सक्सेस के बीच। कुछ लोग अपने अचीवमेंट को ही सक्सेस मान बैठते हैं, बट यहां पर बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के बीच। अचीवमेंट इज जस्ट अ फील्ड स्पेसिफिक एंड डेस्टिनेशन। आपने कोई अचीवमेंट कर लिया, वो एक टेम्परेरी फेज है, टेम्परेरी फेज। आपके पास अचीवमेंट आया, अभी आप एक डिग्री ले लेंगे, उसके बाद क्या, है ना, उसके बाद फिर अगले अचीवमेंट की तैयारी। और अगर आप बार बार अपनी हैप्पीनेस को अचीव करने पर पोस्टपोन करते जाएंगे, आप लाइफ पूरी पोस्टपोन कर चुके होंगे और वो खुशियां कभी नहीं जी पाएंगे। इसके लिए समझना पड़ेगा मुझे सक्सेस को, बिकॉज सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। सो डेस्टिनेशन से ज्यादा समय आप प्रोसेस में हैं। सो एंजॉय द प्रोसेस, लव द प्रोसेस। एग्जाम हम 8 से 10 दिन देते हैं, लेकिन पढ़ाई हम पूरे साल करते हैं। तो अगर मैंने पढ़ाई को एंजॉय किया होगा, अगर मैंने प्रोसेस को एंजॉय किया होगा, डेस्टिनेशन जो होगा वो मेरी मर्जी का होगा। अगर डेस्टिनेशन मेरी मर्जी का नहीं है, इट मींस मैंने प्रोसेस को राइटली फॉलो नहीं किया है। लोग गलती करते रहते हैं कि वो बस डेस्टिनेशन का इंतजार करते हैं, जब मैं ये पा लूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, जब ये मिल जाएगा तो मेरी लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी। दोस्त, अगर आप अब बेहतर रहोगे तो फाइनल रिजल्ट भी बेहतर ही मिलेगा। So what is success? Success is a progressive realization of worthwhile goals. Success के लिए जरूरी है you must be master in setting the goals. If you are master in setting the goal and achieving the goal, then you will champion forever. और आपकी लाइफ में कोई ऐसा दिन नहीं आएगा जिसे हम डिप्रेशन के नाम से जानेंगे, या जिसे स्ट्रेस के नाम से जानेंगे, या जिसे एंजाइटी के नाम जानेंगे, जो आजकल बढ़ता जा रहा है। आप पता है केवल दिल्ली के अंदर मोर देन 30 लाख पीपल आज डिप्रेशन के पेशेंट हैं। आज करंट सिनेरियो में आदमी छोटी छोटी सिचुएशंस को बहुत बड़े रूप में लेके चल रहा है और दुखी हो जा रहा है ना। उसका मेन कारण क्या है? क्योंकि वो हर दिन को नहीं जी रहा है ना। एवरी डे इज अ ब्यूटीफुल डे इन अवर लाइफ, सो लिव अ बैलेंस एंड कंटेंटेड लाइफ इज अ ट्रू सक्सेस। लाइफ में कोई कहता है, अभी उन्होंने क्या बोला, बहुत अच्छी बात है शिवानी बोली, बीइंग योरसेल्फ।
अपने आप में आप जो हो वो बनो, दूसरों की भीड़ के पीछे मत भागो, लोग क्या कर रहे हैं उसके पीछे मत भागो, है ना। यू फाइंड योर वे, यू प्रूव योर सेल्फ। आप अपने आप की एक ऐसी मंजिल पाओ कि लोग आपकी मंजिल को पाना चाहें। यू बी द इंस्पिरेशन, जस्ट यू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली एंड यू कैन, बिकॉज दुनिया में भगवान ने गार्बेज नहीं बनाता है, वो क्वालिटी पीपल बनाता है। यू आर द यूनिक, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपका आधार कार्ड भी कहता है, जोक इज द पार्ट। आप देखो अपना आधार कार्ड में आपका फिंगरप्रिंट किसी से नहीं मिलेगा, आपके आईज किसी से नहीं मिलेंगे, चाहे दुनिया बिल्कुल आपकी शक्ल के 7 लोग हो या 8 लोग हो। So, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम यूनिक, आज से पहले कोई मेरे जैसा पैदा नहीं हुआ, आज के बाद कोई मेरे जैसा पैदा नहीं होगा। आई एम यूनिक, सो मैं यूनिक अपनी क्या पहचान छोड़ के जाने वाला हूं, या मैं दूसरों की पहचानों के एग्जाम्पल देता रहूंगा। मैं कैसे एक ऐसी पहचान बनूं कि लोग मेरे एग्जाम्पल दे सके। एंड यू कैन बी फ्रॉम एनी वेयर एनी फील्ड, दुनिया के आप किसी फील्ड को आप अमर कर सकते हैं। फील्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट, पर्सन इज इंपॉर्टेंट। सो यहां पर मुझे समझना पड़ेगा कि लोग लाइफ में गलती क्या करते हैं जनरली, वो केवल एक तरफ फोकस जाते हैं, दैट इज ऑन द फिजिकल एरिया ऑफ द लाइफ। मैं ये अचीव करूंगा, पैसे अचीव करूंगा, ये गाड़ियां, ये बंगले, सब कुछ आ जाएगा। दैट्स फाइन, होना चाहिए, खूब पैसा कमाना चाहिए। मनी इज नॉट अ बैड थिंग, मनी इज एन एनर्जी। अगर अच्छे और चरित्रवान लोग खूब सारा पैसा कमाएंगे तो एक सुंदर समाज का निर्माण होगा, एक ब्यूटीफुल हम एनवायरमेंट क्रिएट करेंगे, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब आप याद रखिएगा दोस्तों, यदि आपका पैशन केवल पैसा होगा तो आपके अंदर बैड हैबिट्स आएंगे ही आएंगे, आएंगे ही आएंगे। इफ योर गोल्स आर ओनली फाइनेंशियल, आप गारंटीड करप्ट हो ही जाएंगे। बट अगर आपके गोल फाइनेंशियल के साथ सोशल और स्पिरिचुअल होंगे, आप दुनिया के लिए एडमायरेबल होंगे। यू बी अ इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी फॉर ऑल मेनी पीपल्स। So understand very carefully. That's why I am saying physical, mental, emotional, social, spiritual. That is called life. The combination of 5 pillars. अगर हमारी जिंदगी है तो शानदार जिंदगी, बैलेंस जिंदगी, contented life must be balanced by these 5 pillars. Physically, I must be sound. I need health, I need wealth, all the things I need. And mentally, I must be solid. मुझे पता होना चाहिए मेरी लर्निंग कैपेबिलिटीज, मेरे डिसीजन पावर्स, है ना, मेरा कॉन्सेंट्रेशन, मेरी क्रिएटिविटीज। मेंटल, इमोशनली, बिकॉज वी आर द बीइंग्स, तो हम इमोशनल हैं, हमारे पास फीलिंग्स हैं। सो मुझे क्या करना है, फैमिली है, कम्युनिकेशन है, जो भी सोशल है मेरे पास में, टीम वर्क है, वहां मेरे इमोशंस होंगे। लेकिन मुझे चेक करना है कहीं मेरे इमोशंस सैड के, कभी मेरे इमोशंस खुशी के, ये झूल तो नहीं रहे हैं, कहीं कोई भी चीज मुझे इमोशनल तो नहीं कर दे रही है। इमोशंस होना बुरी बात नहीं है, इमोशनल होना बुरी बात है, क्योंकि अगर आप इमोशनल हो जाएंगे यू गोइंग टू वीक। सो डोंट बी इमोशनल अबाउट एनीथिंग और एनी सिचुएशन, है ना। कीप इमोशंस इंटैक्ट विद इन, दैट इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। यूज योर इमोशन इंटेलिजेंटली। एंड सोशल, है ना, हम सभी कौन है, सोशल एनिमल कहा जाता है हमें। हम केवल एनिमल नहीं है, वी ऑल आर सोशल एनिमल। इफ वी आर सोशल एनिमल तो इसका मतलब क्या है, सोशल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज से बंधे हुए हैं हम। If I am a social animal, then I need to be a person like who make the society better place to live. And how I make better place to live? When I follow all the social and constitutional law which applied on me. मुझे व्यवस्था नहीं बिगाड़नी है, मुझे हमेशा वो काम कर रहे हैं जिससे मैं व्यवस्था को बेहतर करने का पार्ट प्ले कर सकूं। और उसके लिए मुझे जरूरत है अपने सोशल और कंस्टिट्यूशनल को समझना। मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूं। आप रेड लाइट पे जा रहे हैं, सभी लोग रेड लाइट क्रॉस कर जा रहे हैं क्योंकि सुबह का टाइम है, कोई रोक नहीं रहा है, कोई देख नहीं रहा है, और आप सब लोग क्रॉस कर रहे हैं। आप भी उस भीड़ में शामिल हो गए, तो आपने लॉ ब्रेकर्स की संख्या बढ़ा दी। यू इंक्रीज द नंबर ऑफ लॉ ब्रेकर्स। बट अगर आप वहीं पर रुक जाते हैं उस रेड लाइट पर, कभी रेड लाइट जंप नहीं करते हैं, तो क्या होगा, आपको देखकर और 4 लोग रुकेंगे और आपने समाज में 4 और लोगों को तैयार कर दिया इस समाज को बेहतर करने के लिए। दैट्स इंपॉर्टेंट। लाइफ में आपका करेक्टर क्या है वो तब पता नहीं चलता जब आपको लोग देख रहे हैं। आपका रियल करेक्टर पता चलता है जब आप अकेले में होते हैं, तब आप क्या करते हैं। इसीलिए एक बहुत अच्छा बुक है जो आप सब जरूर पढ़ें, द रिसर्च बाय डॉक्टर शैड हेल्मस्टेटर, व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ। आप क्या कहते हैं जब स्वयं से बातें करते हैं। पीपल क्रिटिसाइज हिमसेल्फ और हरसेल्फ continuously. Never criticize you. Never going to any kind of guilt.
है ना। अपनी गलतियों के लिए कभी खुद को क्रिटिसाइज ना करें, गलतियों से लर्न करने का प्रयास करें, बिकॉज मिस्टेक्स गिव टीचिंग टू अस। और याद रखिएगा, यदि कोई सिचुएशन बार बार आपकी लाइफ में रिपीट हो रही है, इसका मतलब वो आपको मैसेज दे रही है कि वो एक लेसन लिए हुए है अपने अंदर। यू लर्न द लेसन फ्रॉम द सिचुएशन एंड आप आगे बढ़ जाओ। और अगर वो बार बार सिचुएशन रिपीट हो रही है, इसका मतलब अभी तक आपने उस सिचुएशन के द्वारा सिखाया जाने वाला लेसन तक सीखा नहीं है। मेरा आप सबसे एक सवाल है, आप बताइए, क्वेश्चंस पहले बने या सॉल्यूशंस पहले बने? क्या चीज पहले बनी है, क्वेश्चंस या सॉल्यूशंस? क्वेश्चंस पहले बने या आंसर? सॉरी, सॉल्यूशन पहले से एग्जिस्ट करते थे सर, लेकिन इंसान के दिमाग में क्वेश्चन आया तो उसने उसका सॉल्यूशन ढूंढा। यस, इसका मतलब क्या है, हर सवाल का जवाब है, तभी कहा जाता है ना, एवरी क्वेश्चन हैव एन आंसर। इसका मतलब यह कि अगर मेरी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो प्रॉब्लम मुझसे बड़ी नहीं है, मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहीं ना कहीं है। जो लोग ये होप छोड़ देते हैं अब मेरा क्या होगा, सुसाइड कर लेते हैं, मेरे को तरस आता है उन पर। दोस्त, तेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है, और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास हो ऐसा तो जरूरी नहीं है, किसी ना किसी के पास है। अगर मुझे कल को हार्ट प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर के पास सॉल्यूशन है। ठीक वैसे ही हम सब सोचते हैं कि आज तक बहुत सारी इन्वेंशंस हुई, दुनिया में आज तक कोई इन्वेंशन नहीं हुई है, डिस्कवरीज हुई हैं बाय द ऑब्जर्वेशन। आप सोचो, क्या न्यूटन से पहले क्या सेब ऊपर जाता था क्या? जब न्यूटन ने देखा, सेब तो पहले भी नीचे ही आता होगा ना, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो न्यूटन से पहले भी एग्जिस्ट करता था ना, बट उसने उस चीज को ऑब्जर्व कर लिया। सो इन द सेम वे, जब हम ओपन माइंडेड होते हैं, जब हम फोकस्ड होते हैं, तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्वालिटी काम कर रही होती है, एंड वी गो द बिग टाइम। एंड फिफ्थ पिलर इज स्पिरिचुअल, हु एम आई, ये जानना कि मैं कौन हूं। You are not that body, you are not that name, you are not that achievement, you are not that education, you are not a religion, you are not a body। हम कभी नहीं कहते कि मैं शरीर दर्द कर रहा हूं, हम कहते हैं मेरे शरीर में दर्द है, my body is paining। I am not paining, my body is paining, so who am I? I am spirit, I am soul, I am energy, conscious energy, being energy who runs this body practically। I see through the eyes, आंखें नहीं देखती हैं, आंखों से मैं देखता हूं। अभी तो आप देखो, सबकी आंखें एक ही चीज को देख रही होती है, लेकिन डिफरेंट सोच रही होती है। इसका मतलब क्या है, संसार हमें वैसा नहीं दिखता जैसा संसार है, संसार हमें वैसा दिखता है जैसे हम खुद अंदर से हैं। एक डाउट वाले बंदे को सब में डाउट दिखता है, और एक फेथफुल बंदे को सबके अंदर फेथ दिखाई देता है। सो संसार कुछ नहीं है, वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई सेल्फ, द काइंड ऑफ एटीट्यूड आई हैव। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई नीड टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अब तक आपने कुछ चीज समझी हो ना समझी हो, इन चीजों ने मेरी पूरी जिंदगी बदली है। 27 ईयर्स से मैंने एक तरीके से रिसर्च किया है इन दोनों फैक्टर्स के ऊपर, मेरी पूरी लाइफ को रन करता हूं मैं इन फैक्टर्स के ऊपर। अगर आप सब अपनी पसंद की डेस्टिनी क्रिएट करना चाहते हो, इन योर प्रोफेशनल कैरियर, इन योर पर्सनल कैरियर, इन योर मेंटल एटीट्यूड एंड इमोशनल एटीट्यूड, व्हाटएवर, इन योर किसी भी एरिया में जीवन के, तो इन दो फैक्टर्स को आप ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिएगा। फर्स्ट थिंग, ये एक क्वेश्चन है आप सबके लिए कि आपकी लाइफ में आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, उसमें माइंड एंड बॉडी, इन दोनों का रोल होगा। बॉडी एक्सप्रेशन मीडियम है, माइंड उसका कंट्रोलर है। माइंड इज अ सॉफ्टवेयर एंड बॉडी इज अ हार्डवेयर, है ना। ये मुझे अंडरस्टैंड करना है इन दोनों को। और दूसरी चीज मेरे पास क्या होती है, वैल्यूज एंड रिसोर्सेज। आपके पास रिसोर्सेज होंगे, बट अगर वैल्यू नहीं है तो आप रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल कर जाएंगे। और अगर रिसोर्सेज का आपने एक बार गलत इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया तो वो आपकी वैल्यूज को भी डिग्रेड करते जाएंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम थोड़ा डिटेल में अभी कवर करने वाले हैं। जब माइंड और बॉडी की हमने बात करी, तो अब इन दोनों में से भी ज्यादा रोल कौन प्ले करता है मेरी लाइफ को आगे लेके जाने में? तो आप सब, क्योंकि मैं सबसे पूछ नहीं सकता टाइम की लिमिटेशन के कारण से, लेकिन आप सब सहमत होंगे मेरी बात से, माइंड प्लेज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रादर देन बॉडी। क्यों? आज आपका जो रिस्पेक्ट है, जो रिगार्ड है, वो माइंड की वजह से। दोस्तों, हम बॉडी के थ्रू बहुत लोगों को अट्रैक्ट और इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, लेकिन अपने माइंड के इंटेलिजेंस, अपने वर्किंग पैटर्न, अपने वर्किंग स्टेमिनाज, अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू पूरे दुनिया को हम इन्फ्लुएंस एंड इंस्पायर कर सकते हैं। स्टीवन हॉकिंस, जिसका बॉडी का एक भी पार्ट अच्छा नहीं था, लेकिन उस आदमी ने वो रिसर्च कर दी जो तगड़ी तगड़ी बॉडी रखने वाले उनके बारे में सोच तक नहीं सकते हैं। लेकिन सवाल मेरा उससे ज्यादा अगला इंपॉर्टेंट आता है, पर हम वैल्यू किसको ज्यादा दे रहे हैं? हम केयर किसकी ज्यादा करते हैं, माइंड की या बॉडी की? तो आप सबका जवाब भी शायद यही होगा, बॉडी की। खाना कितनी बार खाना है, एसी में सोना है, कंफर्ट में रहना है, गाड़ियों में चलना है, ब्रांडेड कपड़े खरीदने हैं, ब्रांडेड चीजें खरीदनी है,
हम सब रन कर रहे हैं बॉडी के कंफर्ट के लिए, और ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि माइंड गलत क्या है। बॉडी बीमार हो जाएगी, तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन माइंड बेचारा कब से बीमार है, कब से दुखी है, कब से शांत है, उसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन और माइंड ही मेरी डेस्टिनी को बना रहा है, क्योंकि माइंड के कंट्रोल से ही एक्शन कंट्रोल होते हैं। हम सब जानते हैं कर्म से भाग्य बनता है, एक्शन लीड्स डेस्टिनी, बट व्हाट लीड्स टू एक्शन। एक्शन को कौन लीड करता है? सो एक्शन को लीड करती हैं, जो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा माइंड की रिक्वायरमेंट। हमारे हर एक्शन की जड़ में है इंफॉर्मेशन। मैं हमेशा लोगों से पूछता हूं, व्हाट इज द फूड ऑफ माइंड? जैसे बॉडी का फूड खाना, फ्रूट, ये सब कुछ होता है, ऐसा ही माइंड का फूड क्या है? तो कुछ लोग मुझे हमेशा जवाब देते थे, थॉट्स। मैं हमेशा लोगों से सवाल पूछता हूं, थॉट माइंड से आते हैं या माइंड में आते हैं? इन द माइंड और फ्रॉम द माइंड? ये सोचने की बात है। थॉट्स कम इन द माइंड और फ्रॉम द माइंड? इन द माइंड। लेकिन थॉट आता कहां से है? अब सोचो, अगर कोई चीज आपने देखी ना हो, आपने उसके विषय में सुना भी ना हो, आपने उसका लिटरेचर नहीं पढ़ा हो, और आपने एसोसिएशन नहीं की हो उस चीज की, कभी भी वो चीज आई ना हो आपकी लाइफ में। जैसे मैं आपकी लाइफ में आज से पहले कभी नहीं था, ना आपने मुझे देखा, ना सुना, ना मिले, ना कोई बातचीत हुई थी, तो मेरी वजह से ना आपकी लाइफ में कभी कोई दुख आया होगा और ना ही कभी कोई सुख आया होगा। आज आपकी लाइफ में कोई भी दुख है, आज आपकी लाइफ में कोई भी सुख है, आपका कोई भी अचीवमेंट है, वॉट एवर यू हैव इन योर लाइफ, अच्छा या बुरा, उसका कारण है काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू फीड इन योर माइंड। क्या देखना आपने चुना है, क्या सुनना आपने चुना है, क्या पढ़ना आपने चुना है, और कैसी एसोसिएशन में आप रहते हैं। इंफॉर्मेशन कैसी ले रहे हैं आप, क्वालिटी की इंफॉर्मेशन। इसीलिए कंप्यूटर की लैंग्वेज में गीगो कहा जाता है, गार्बेज इन तो गार्बेज आउट। सो इन इज व्हाट? इंफॉर्मेशन, आंखों से, कानों से, पढ़ाई से, संगत से। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम से, मोबाइल से क्या जा रहा है, इंटरनेट से क्या जा रहा है, न्यूज़पेपर से क्या जा रहा है ना, एसोसिएशन से क्या जा रहा है, आपके माइंड में कौन सी इंफॉर्मेशन रजिस्टर हो रही है। बिकॉज आपके थॉट का बेस होगा इंफॉर्मेशन। अगर इंफॉर्मेशन रजिस्टर ना हो, आप उसके बारे में विचार भी नहीं करेंगे। और हम कहते हैं विचार ही वस्तु बनते हैं, थॉट बिकम थिंग्स। तो आपको चेक करना है, वो जो थॉट्स हैं, थॉट की वजह से चीजें नहीं हो रही हैं। थॉट तो 50,000 आते हैं दिन में दिमाग में, लेकिन सभी विचार कर्म नहीं बनते। बट जिस थॉट को आप बार बार रिपीट करते हैं, इट बिकम योर इमोशन और फीलिंग। इमोशन इज व्हाट? एजिटेशन इन थॉट्स इज इमोशन, बट परसेप्शन बाय टच इज अ फीलिंग। सो फीलिंग इज गुड, बट इमोशंस आर जनरली नॉट, बिकॉज इमोशंस एजिटेट कर रहे हैं, इमोशंस इरिटेट कर रहे हैं, है ना। इमोशंस शो कर रहे हैं कि मैं कितना अटैच हूं और मेरी एक्सपेक्टेशंस कितनी हायर हैं। बट फीलिंग, जब आप इमोशंस को बैक्ड बाय अंडरस्टैंडिंग, when your emotions backed by understanding, backed by control, backed by calmness, backed by coolness, convert into feeling. That's why we say just feel it. Feel it means just understand it. That's most important, my friends. So मुझे समझना पड़ेगा इस बात को, मैं किन थॉट्स को अपनी फीलिंग तक लेके जा रहा हूं, नेगेटिव्स को, अननेसेसरी को, या पॉजिटिव्स को। मेरी लाइफ के लिए रिफ्लेक्शन मुझे कहां लेके जाएगा, क्योंकि जैसे मेरे इमोशंस होंगे वैसे मेरे एक्शंस होंगे। अगर मेरे पॉजिटिव इमोशंस होंगे तो पॉजिटिव एक्शन होगा। आप कभी भी बहुत दुखी हैं, अशांत हैं, डिप्रेस हैं, आप कभी भी एनकरेजिंग एक्शन नहीं कर सकते हैं। सो चेक करिए मैं खुद के कैसे इमोशंस क्रिएट कर रहा हूं, मैं किन थॉट्स को अपने माइंड को रिपीट कर रहा हूं। सपोज मैं आपसे कहता हूं यू आर अ वेरी बैड पर्सन। अब मैंने तो एक बार कहा और मैं चला गया, अब आप सोचते हो मैं कैसे बैड हो सकता हूं, ऐसा कैसे बोल सकते हैं, ये कोई तरीका होता है बोलने, क्या इनको बोलने का तरीका नहीं आता, इनको ये कर। हु रिपीट माई थॉट? Who makes my thought your emotion? You, because you repeat the people's opinions continuously, regularly. Whatever other people are saying about you, it's just an opinion, but you make it a fact. If you convert people's opinions into fact, then you're going to fail in your life. You can't be successful in your life, my friends. Remember this, because your actions, repetition create your habits. जिस कर्म को आप बार बार करते हो आपकी आदत बन जाता है। अब आप चेक करो आप कैसी हैबिट बना रहे हो, आपकी हैबिट आपके गोल को सपोर्ट कर रही है या गोल से डिस्ट्रैक्ट कर रही है। अगर आप बहुत सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मूवीज जा रहे हैं, पब जा रहे हैं, इस तरह के आप एक्टिविटीज कर रहे हैं, आप चेक करो कि वो आपकी हैबिट आपकी डेस्टिनी में, आपके गोल को बनाने में, आपको वैल्यूएबल बनाने में, आपको अचीवर बनाने में कितना योगदान देंगी। या आप अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं, कल मुझे क्या करना है, अपना एवरी सेकेंड आप प्लान करते हैं। बिकॉज टू डू लिस्ट अगर आप नहीं बना रहे हैं, यू जस्ट किल योर लाइफ। दोस्तों मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूं, आई एम अ प्रोफेशनल, है ना, मैं एक बिजनेसमैन हूं, एक नेटवर्कर हूं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल मेरी टीम में है। आज मैं मोर देन 3000 पीपल को लीड करता हूं अराउंड इंडिया।
है ना। और मैंने ये बात लर्न की है कि जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में टाइम बर्बाद करता है वो कभी सफल नहीं हो सकता है, बिकॉज लाइफ की वन वर्ड डेफिनेशन है, लाइफ इज जस्ट नथिंग, इट्स जस्ट अ टाइम, इट्स जस्ट अ टाइम। टाइम सफल, लाइफ सफल, टाइम को आपने बर्बाद किया, लाइफ बर्बाद हो जाएगी। सो अगर टू डू लिस्ट बनाते हैं, क्या करना है, कब करना है, एवरीथिंग प्रायोरिटाइज करते हैं, देन यू गो बिग इन योर लाइफ। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, हैप्पी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑपरेटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपके अंदर ये हैबिट्स हैं, दुनिया का कोई भी गोल आपकी लाइफ में अनफुलफिल्ड नहीं रह सकता। आई गारंटी यू दैट, बिकॉज आई लिव अ लाइफ ऑन दिस। सो आपके जो हैबिट्स होती हैं वही आपके बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करती हैं। कहते हैं भाई अब तो इसकी आदत बन गई है ना, जो इसकी आदत है अब तो इसका व्यवहार बन गया है, अब तो ये बिल्कुल ऐसा ही हो गया है, और उनको नाम मिलने शुरू हो जाते हैं। और और बिहेवियर रिफ्लेक्ट योर कैरेक्टर, आपके बिहेवियर के बेस पर ही आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाया जाता है आपके इंस्टीट्यूशंस के अंदर। जैसा बिहेवियर आपका होता है, अब आप चेक करो आपका बिहेवियर कैसा, आपका कैरेक्टर कैसा बनेगा। आप एंजेलिक कैरेक्टर रखेंगे या आप डेविल कैरेक्टर रखेंगे। एंजेलिक कैरेक्टर मींस लव, केयर, ट्रस्ट, स्ट्रांग वर्क एथिक्स, रिस्पांसिबिलिटी, गोल्स, डिसिप्लिन, कमिटमेंट, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन एंड ऑल। एंड द devil character is lie, lust, poor work ethics, anger, irresponsible, infatuations, no goal, impress others, many things। आपको चेक करना है कौन सा वैल्यू आ रहा है मेरे अंदर, बिकॉज आपको आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है, वो मां भी नहीं जिसने हमें जन्म दिया है, क्योंकि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरा माइंडसेट क्या है ना, वो मुझे ही पता होता है। सो यू चेक मेरा कैरेक्टर कैसा है, एंड योर कैरेक्टर रिफ्लेक्ट बाय योर पर्सनैलिटी। Just see these people, they are the personality, symbol of love, Mother Teresa। And मैं आपको, क्योंकि आप प्रोफेशनल्स हैं, एक प्रोफेशनल एग्जांपल देना चाहूंगा, सुंदर पिचाई। अ पर्सन जो 42 की एज में 1200 करोड़ रुपए के सैलरी पैकेज पर है गूगल के लिए। 44 की एज में 1200 करोड़ रुपए सैलरी। कैसा हुआ? जब उनका गूगल में इंटरव्यू हुआ तो उनसे यह नहीं पूछा कि आपकी डिग्रीज क्या है, उनसे यह नहीं पूछा कि आपकी प्रोफेशनल स्किल्स क्या है, उनसे यह नहीं पूछा गया कि आप कंपनी के लिए कैसे बेटर काम करेंगे। उनसे पूछा गया आपकी लाइफ का बिगेस्ट फेलियर क्या था एंड हाउ यू ओवरकम दैट, हाउ यू ओवरकम दैट। एंड द आंसर सुंदर पिचाई, 35 मिनट का टाइम था सुंदर पिचाई के पास, और सुंदर पिचाई का आंसर था हार्ड वर्क। बड़े कंफ्यूज हो गए लोग, हार्ड वर्क इज द बिगेस्ट फेलियर? यस। मैं पहले, क्योंकि मैं गरीब घर से आया था, मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने सब कुछ बहुत मेहनत से अचीव किया था, तो मेरा विश्वास हो गया था मेहनत से ही सब कुछ अचीव किया जा सकता है। और मैं अपने आप ज्यादा इंटेलिजेंट किसी को नहीं समझता था, और मैं कभी भी टीम नहीं बना पाता था, मैं सब में डाउट ही करता था। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि बिना टीम के आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते हो, बिकॉज टीम का मतलब ही होता है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। अगर मुझे बहुत ज्यादा अचीव करना है, आई नीड टू क्रिएट अ टीम। सो टीम क्रिएशन के लिए क्या चीज चाहिए? मुझे दूसरों को एम्पावर करना आना चाहिए, दूसरों को एनकरेज करना आना चाहिए, दूसरों के गोल जगाना आना चाहिए, मुझे ड्रीम बिल्डिंग आना चाहिए, मुझे दूसरों में फेथ होना चाहिए। ये बहुत जरूरी था और मैंने वो लर्न किया। इसीलिए आज सुंदर पिचाई को माना जाता है द बिगेस्ट टीम क्रिएटर, अ पर्सन हु क्रिएट बिग टीम्स एंड लीड द बिग टीम्स। आज ये आदमी केवल अपनी दैनिक दिनचर्या के कामों को छोड़कर कोई भी काम अपने आप नहीं करता, केवल डे रूटीन्स करता है, बाकी सभी काम टीम परफॉर्म करती है, और वो 1200 करोड़ रुपए कमाता है, कूल रहता है, काम रहता है, कंटेंट, स्ट्रेस फ्री लाइफ लीड करता है। सो अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली व्हिच काइंड ऑफ पर्सन यू लाइक टू बी। आप इन सभी को जान सकते हैं। ये इस लाइफ में इसलिए नहीं जाने जाते कि इन्होंने क्या अचीव किया, उससे ज्यादा इस बात के जाने जाते हैं कि इनकी लाइफ की जर्नी क्या थी। इनके अचीवमेंट से हम कुछ नहीं सीख सकते हैं, वी कैन लर्न थ्रू द प्रोसेस ऑफ देम। आपको समझना, जैसी आप पर्सनैलिटी होंगे वैसी डेस्टिनी होगी, क्योंकि पर्सनैलिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ अ पर्सन, एंड एबिलिटी कांट बी मेजर्ड बाय आउटर एक्सपीरियंसेस। पर्सनैलिटी मेजर्ड बाय करेज, कॉन्फिडेंस, लव, केयर, रिस्पेक्ट, दैट इज कॉल्ड पर्सनैलिटी, जो बिल्ड करने के लिए दुनिया में कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है दोस्त, है ना। और मैं, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ लास्ट 27 से एसोसिएट हूं, मैंने वहां पर स्पिरिचुअल साइंस इज ओनली साइंस विच मेक यू अ वैल्यूएबल पर्सन, जो आपको आपके अंदर को समझना सिखाती है। और आपके ऊपर चॉइस होती है कि आप हैप्पी डेस्टिनी चाहते हैं या सैड डेस्टिनी चाहते हैं। हैप्पी डेस्टिनी प्रोग्रेसिव, लविंग, यूनाइटेड, हैप्पी, और या एंगर, टेंशन, स्ट्रेस, अनहैप्पी, आपकी चॉइस है। जैसी इंफॉर्मेशन होंगी वैसे थॉट से इमोशन, इमोशन से एक्शन, एक्शन से हैबिट, हैबिट से बिहेवियर, बिहेवियर से करेक्टर, करेक्टर से पर्सनैलिटी, एंड योर पर्सनैलिटी मेक योर डेस्टिनी। आप सोचिए, मेरा भाग्य किसने बनाया? मैंने बनाया, क्योंकि जब इंफॉर्मेशन मैंने चुनी, मेरी आंखों से कोई पड़ोसी नहीं देखता, मैं देखता हूं, मेरे कानों से कोई पड़ोसी नहीं सुनता, मैं सुनता हूं, मेरी किताबें कौन सी पढ़नी है, काइंड ऑफ लिटरेचर जो मुझे पढ़ना है वो मैं चूज करता हूं, काइंड ऑफ फ्रेंड्स मैं चूज करता हूं। कहां मेरा जन्म होना था ये मेरी चॉइस नहीं थी, लेकिन
काइंड ऑफ फ्रेंड आई चूज, वो मेरी ही चॉइस थी। मुझे किन के साथ रहना है, मुझे किन चीजों को देखना है, इट ऑल माई डिसीजन। दैट्स वाई लक इज लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। लक इज जस्ट नथिंग। अगर मैं सही ज्ञान के अंतर्गत मेहनत करता हूं तो दुर्भाग्य कभी मेरा पीछा कर ही नहीं सकता है ना। सो इंपॉर्टेंट इज द काइंड ऑफ नॉलेज आई गिव टू माई सेल्फ, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। एंड इसके लिए समझना होगा मुझे बीइंग की वैल्यूज को। आई द सोल, जैसे हमारी बॉडी प्रकृति के 5 एलिमेंट से बनी हुई है, ऐसे ही हमारा जो बीइंग है वो इन 7 वैल्यूज से बना है। अब आप चेक करिएगा, जैसे विबग्योर में 7 कलर्स होते हैं और दुनिया के सारे कलर उनसे बन सकते हैं, उसी प्रकार से अगर मैं बीइंग इन 7 वैल्यूज पे काम करूं तो दुनिया का कोई भी प्रोफेशनल एथिक हो आपका, है ना, चाहे रिड्यूसल मैनेजमेंट हो, मैकेनिज्म कोई भी हो आपकी लाइफ में, प्रोफेशनल प्लेस की कोई रिक्वायरमेंट हो, आप सब फुलफिल कर देंगे। सो जस्ट यू इमर्ज योर इनर वैल्यूज, है ना। प्रकृति के 5 तत्वों से शरीर बना है और 7 वैल्यूज से सोल बनी है। योर स्पिरिट बीइंग दिस। ये कैसे पता चलेगा? जब पानी कमी होती है तो आप पानी पीते हो, बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। ऐसे ही जब मुझे प्यार की कमी होती है मेरी लाइफ में तो मुझे प्यार की रिक्वायरमेंट लग रही होती है, मुझे प्यार मिल जाए। क्यों? क्योंकि मैं प्यार से बनी हुई हूं। मुझे शांति क्यों चाहिए, पीस क्यों चाहिए? क्योंकि मैं उस पीस से बनी हूं। मुझे प्योरिटी क्यों पसंद है, मुझे इनोसेंस क्यों पसंद है लोगों में? क्योंकि आई एम ऑल्सो इनोसेंट। I am that, I am peace, I am love, I am happiness, I am power, I am bliss. I am. और ये कैसे बढ़ते हैं? देने से। आप सोचो, आप किसी को प्यार दो तो आपका प्यार पहले आप फील करोगे। आप दूसरों को पीस दो, वो पीस पहले आप फील करोगे। आप किसी को नॉलेज दो तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो सोल का पावर है देने में दोस्त, लेने में नहीं। आप चेक करो, जब भी आप किसी की मदद करते हो आपका दिल खुश हो जाता है। क्यों? आप ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हो। लेने में खुशी नहीं है, देने में खुशी है। नॉलेज, प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, पावर एंड ब्लिस, ये 7 वैल्यूज हैं। ये 7 वैल्यूज मेरी अपनी वैल्यूज हैं। और अगर मैं ये 7 वैल्यूज पर रोज काम करता हूं, इनसे जनरेटेड थॉट्स मैं अपने आप को देता हूं और मैं रोज इस बात में सेल्फ टॉक करता हूं कि आई एम नॉलेज, आई एम प्योरिटी, आई एम पीस, आई एम लव, आई एम हैप्पीनेस, आई एम पावर, आई एम ब्लिस, नो नीड फ्रॉम एनीवन एल्स। मुझे किसी से प्यार नहीं चाहिए। आई एम अ गिवर। जब भी मुझे लगे मुझे प्यार चाहिए, दूसरों को देना शुरू कर दो। देते देते आपका प्यार बढ़ जाएगा। जब भी आपको लगे मेरा मन शांत नहीं है, अरे जाकर किसी और को शांति और खुशी देना स्टार्ट कर दो। आप खुशी बांटना शुरू कर दो, आपका मन शांत हो जाएगा। स्ट्रेस दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है किसी और स्ट्रेस पर्सन को जाओ और उसका स्ट्रेस दूर कर दो। और आप कर सकते हैं। क्यों? एक बात याद रखना, हर इंसान के पास हर समस्या का समाधान है, बशर्ते समस्या उसकी नहीं होनी चाहिए। हम किसी घर में मृत्यु हो जाती है, जाके बड़े प्यार समझाते हैं, कोई बात नहीं, अरे जो आया है उसे जाना पड़ेगा, ऐसा है, थोड़ा धैर्य रखो। लेकिन जब अपने घर में आती है तो बहुत ज्यादा रोते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। सेम सिचुएशन है, लेकिन दूसरे को सोल्यूशन दे रहे हैं, खुद को नहीं दे पा रहे हैं। तो इस अच्छा क्या है, आप दूसरे स्ट्रेस लोगों की समस्या सुलटाइए, आपको खुद कॉन्शियसनेस आ जाएगी आपकी कैसे सुलटेगी। और इसके साथ में सोल नीड दीज 8 पावर्स, है ना। ये 8 पावर्स हैं उसके पास। पावर टू टॉलरेट, सहन करने की शक्ति, पावर टू एकोमोडेट, समाने की शक्ति। ये बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, बट मैं जनरली केवल इनको टच कर रहा हूं क्योंकि टाइम बहुत कम है। पावर टू डिस्क्रिमिनेट, परखने की शक्ति। पावर टू जज, डिसीजन लेने की पावर। हर व्यक्ति अपने डिसीजंस के बाद जाना जाता है कि वो लाइफ में कितना सक्सेसफुल होगा नहीं। आपके डिसीजंस बताएंगे कि आप कितने आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे। और डिसीजंस के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड यू। पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति। लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, सिचुएशन आएंगे, आप में कितनी स्ट्रेंथ उनको फेस करने की, आप कितने से देख सकते हैं कि उनके अंदर गिफ्ट छिपा है। पावर टू कॉपरेट, है ना। बिना कॉपरेशन के कभी आप टीम नहीं बना सकते हैं। बिना कॉपरेशन कभी कभी वो बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। महात्मा गांधी अकेले कुछ नहीं कर सकते थे। 20 करोड़ लोगों के दिमाग में उन्होंने एक बीज बो दिया था कि हम कोई विदेशी सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे। और याद रखना, अंग्रेज इसलिए नहीं भागे थे कि उनके साथ में हिंसा कितनी हो रही थी। अंग्रेज इसलिए भागे थे कि उनकी कमर तोड़ दी थी, उनका बिजनेस तोड़ करके। दुनिया की सबसे बड़ी टूटन होती है जब आदमी का फाइनेंस टूट जाता है। 11 कंपनीज को मैनचेस्टर की ताला लग गया था, ताला लग गया था दोस्तों, ये समझिए। तो सबसे बड़ी मार होती है पैसे की मार। पावर टू विथड्रॉ, कब मुझे आगे आना है, कब विथड्रॉ करना है, ये अंडरस्टैंड होना चाहिए। हर समय आगे बढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हर समय फेस करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, कभी कभी विथड्रॉ करना इंपॉर्टेंट होता है। और इसके लिए टॉर्टॉइस, कछुआ सबसे बढ़िया एग्जांपल है। उसे जितना काम करना होता है अंग बाहर निकाल लेता है, काम खत्म हो गया अंदर चला जाता है, इसलिए लंबी उम्र जीता है, बिना मतलब अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता है। और हम इसने ऐसा क्यों किया, उसने कैसा क्यों किया, दूसरों के इमोशंस को अपने अंदर ले आएंगे, दूसरों के दुखों को ले आएंगे, फालतू न्यूज देखते रहेंगे, क्रिटिसाइज करते रहेंगे, कंडेम करते रहेंगे, कंप्लेन करते रहेंगे और फिर बोलेंगे मुझे बड़ा टेंशन हो गया है
अरे भाई, जहां पे तुम्हारा मतलब नहीं है, क्यों आप वहां पे जा रहे हो, क्यों अपनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, है ना? सेव योर एनर्जी। और इसके लिए चाहिए पावर टू बैकअप हमेशा, है ना? चीजों को समेटना आना चाहिए, हमें सार में कहना आना चाहिए, है ना? हमें बहुत फैला के बातों को नहीं करना चाहिए, जितना हम उसको उस रूप में लेकर के आए। और जब आप प्रोफेशनल एरिया में जाओगे तो आपके लिए ये सारा जो मैंने आपको माइंडसेट दिया है, ये आपके प्रोफेशनल करियर में काम आने वाला है, उन एथिक्स को फॉलो करने में काम आने वाला है जो किसी भी प्रकार से किसी कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं, मोरालिटीज जो आपके लिए डिजाइन की जाती हैं, वहां पर जो लॉज बनाए जाते हैं आप इजीली फॉलो कर पाएंगे। और इसी को हम कहते हैं एथिकल बिहेवियर इन द वर्क प्लेस। अब आप चेक करके देखिए एथिकल बिहेवियर में क्या आ रहा है, ओबेइंग। अब अगर मैं लविंग हूं, केयरिंग हूं, ऑनेस्ट हूं, तो मेरे लिए कंपनी किसी भी रूल को ओबे करना कौन सी मुश्किल बात है, अगर मैं डिसिप्लिन हूं। तो मैंने आपको पहले बताया 7 वैल्यूज आ गए, 8 पावर आ गए, मेरे लिए फॉलो करना बड़ी बात नहीं है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये समझाना मैं जरूर आप सबको चाहूंगा। दुनिया में जितने लोग आज दुखी हैं, इसलिए दुखी हैं कि लोगों से एक्सपेक्ट कर लेते हैं बिना उनकी क्षमता को जाने हुए, बिना ये जाने हुए कि जो मैंने कम्युनिकेट किया है सामने वाले ने उतना ही अंडरस्टैंड किया है या नहीं किया है, बिना ये जाने हुए कि सामने वाला एनफ प्रिपेयर्ड है या नहीं है उस चीज को करने के लिए, बिना ये जाने हुए कि सामने वाला करना चाहता है या नहीं चाहता है इस चीज को। दोस्तों, दुनिया में सबसे काम कराने का सबसे आसान तरीका है उनके अंदर उस काम को करने की विल पैदा कर देना, इच्छा पैदा कर देना। लोग आपके लिए काम करना चाहें, इसके लिए जरूरी होता है यू कम्युनिकेट बेटर विद देम। आप पहले उनकी क्षमताओं को जाने। अगर आपने बिना किसी की क्षमता को जाने उसको काम अपॉइंट कर दिया, वो कर नहीं पाएगा। और याद रखना, कोई भी आदमी गलत काम नहीं करता है। आप किसी को काम सौंपते हैं, अगर मैं आज आप सब लोगों को एक वर्क अपॉइंट करता हूं, तो आप सभी साथी उस काम को किस वे में परफॉर्म करेंगे, आप अपनी क्षमताओं से दी बेस्ट करेंगे। लेकिन अब मेरा इमेजिनेशन कुछ और है उस काम के अंदर, और मैंने अपना इमेजिनेशन कंप्लीटली कम्युनिकेट किया नहीं है आपको, और मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं मेरे इमेजिनेशन का रिजल्ट, बट आप वर्क कर रहे हो अपने इमेजिनेशन, अपनी अंडरस्टैंडिंग से। सो यू आर राइट, आई एम रॉन्ग, बिकॉज मैंने अपना विजन अपना पूरी तरह से कम्युनिकेट किया ही नहीं, मैंने ये चेक किया ही नहीं कि यू आर एनफ कैपेबल टू डू दैट। यू डू योर बेस्ट। ये एक अलग बात है कि आपका जो बेस्ट था वो उस वर्क की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम पड़ गया, बट क्या मैंने पहले उसको चेक किया? और लोग चेक ये करते नहीं हैं और एक्सपेक्ट ज्यादा करते हैं, और यहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। अंडरस्टैंड, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है जो आप सोच रहे हैं, जो आप विजन ले रहे हैं, वही आप डिलीवर कर पाए। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेफिनेशन ऑफ मैच्योरिटी सेज टेक द 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। इफ यू ब्लेम समथिंग, सम पर्सन फॉर योर लाइफ, then you are not mature person. A mature person means I am responsible because मेरी आंखों से क्या देखना है, कानों से क्या सुनना है, क्या पढ़ना है, कैसी संगत को करना है, वो मैंने चूज किया था, और मेरी इंफॉर्मेशन से मेरी डेस्टिनी बनी है। सो मेरी लाइफ के लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आई एम रिस्पॉन्सिबल। अकाउंटेबिलिटी, जबान का सच्चा और पक्का, है ना? जो कह दिया वही करने वाला। याद रखना, दुनिया में सबसे खतरनाक लोग होते हैं जो कहते कुछ और है और करते कुछ और है। प्रोफेशनलिज्म, जो मैंने आपको पहले ही बताया, प्रोफेशनल का मतलब ही है मास्टर इन देयर स्किल्स एंड ऑलवेज हैव द विनिंग एटीट्यूड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी, जो कभी सिचुएशंस को आगे नहीं लेके आता है, जो सिचुएशंस में क्रिएटिव करने के बाद, है ना, उसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आता है। अभी एक मूवी आई मिशन मंगल, उसके अंदर आपने देखा होगा कि उसमें क्या दिखाया गया था, है ना, क्योंकि हमें वो रिकमेंड किया गया बिजनेस प्रोफेशनलिज्म के अंतर्गत, तो हमने भी उसका कुछ पार्ट को देखा, जहां पे दिखाया गया कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन, कोई रिसोर्सेज नहीं, नो रिसोर्सेज आर देयर, बट they perform well. उनका क्या, ऑलवेज कम विद द सॉल्यूशन, नॉट विद द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या ये मत बताओ, सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो बताओ। दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म, रियल प्रोफेशनलिज्म। ट्रस्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर योर कोलीग्स, जो भी आपके साथ काम करने वाले लोग हैं उनमें हमेशा विश्वास रखना है, क्योंकि आपका विश्वास एक दिन को गौरवान्वित कर देगा। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आईबीएम के अंदर एक बार एक पर्सन थे, जीएम थे, उनको एक काम सौंपा गया था जिसकी वजह से कंपनी को 10 मिलियन का लॉस हुआ, 10 मिलियन का लॉस। वो बहुत डरे हुए थे कि अब मैं जाऊंगा ओनर के पास तो मुझे फायर कर दिया जाएगा और हो सकता है मेरे ऊपर केस भी कर दिया जाए। लेकिन ओनर ने उनको वेलकम किया विद अ स्माइल एंड कहा दिस इज द नेक्स्ट प्रोजेक्ट फॉर यू, एंड वो प्रोजेक्ट था 30 मिलियन का। वो बड़ा कंफ्यूज हुआ, उसने कहा कि मैंने 10 मिलियन का लॉस किया है, मुझे फायर के लग रहा था, आपने मुझ में ट्रस्ट दिखाया कि 30 मिलियन का प्रोजेक्ट दे दिया है। उन्होंने कहा दोस्त, हमने आप पे 10 मिलियन खर्च किए हैं आपको ट्रेन करने के लिए, और आपने अपनी फेलियरिटी से जो लर्न किया है, हमें पता है कि अब आप ही 30 मिलियन क्रिएट करके देंगे, क्योंकि जो 10 मिलियन में गलतियां की हैं मुझे पता है कि अब 30 मिलियन में वो गलतियां आपसे होंगी ही नहीं। और उस बंदे ने वो करके दिखाया।
लाइफ में आपका विश्वास किसी भी इंसान को आगे लेके जा सकता है। इसलिए गीता में कहा गया है दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य कर्म है किसी का साहस बढ़ाना, और दुनिया का सबसे बड़ा पाप कर्म है किसी का साहस तोड़ देना। अनएथिकल बिहेवियर में हम सब जानते हैं, लाइज, टेकिंग क्रेडिट ऑफ अदर्स, है ना, और दूसरों की मेहनत का क्रेडिट लेना, वर्बल अब्यूजिंग करना, वायलेंस करना, ऑफिस में ऑफिस के अलावा अपने काम करना। तो आप अपने एम्प्लॉयर का टाइम खराब कर रहे हो और उसकी टाइम की प्रोडक्टिविटी खराब कर रहे हो तो कंपनी पे कल को फर्क पड़ेगा। अगर आप कंपनी को हर्ट करोगे तो समझ लेना आप अपनी ही ब्रेड एंड बटर पे फर्क करोगे। एक्सटेंडेड ब्रेक्स लेना, है ना, थेफ्ट करना, मिसयूज करना, सेक्सुअल हेरेसमेंट करना, है ना, करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होना और अपने कोई गोल्स ना होना, ये सभी अनएथिकल बिहेवियर कहलाते हैं। अगर ये आपकी लाइफ में है, आप कभी लाइफ में बड़ी सीढ़ियां ग्रो नहीं कर सकते हैं। कोड ऑफ एथिक्स हमारे पास है, गाइड ऑफ प्रिंसिपल्स डिजाइन्ड बाय द हेल्प प्रोफेशनल्स टू कंडक्ट बिजनेस ऑनेस्टली एंड द इंटीग्रिटी के साथ आप कैसे किसी चीज को परफॉर्म करें, उसके लिए कोड ऑफ एथिक्स होते हैं जो एक एम्प्लॉय के लिए रूल्स की तरह होते हैं और वो हमें जरूर फॉलो करना चाहिए। क्योंकि याद रखना, जो फ्रीडम का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि आप जो चाहें सो करें। एक जो पतंग होती है वो तब तक ऊपर बढ़ती है जब तक उसकी डोर किसी के हाथ में होती है ना। आप समझिएगा इस बात को बहुत ध्यान से। एक ट्रेन तभी तक अपनी मंजिल पर पहुंचती है जब तक पटरियां उसके पास होती हैं। अगर वो पटरी से उतर जाएगी तो वो एक्सीडेंट कर बैठेगी। पटरियां उसके लिए वो नियम है। ऐसे हम सबकी जिंदगी में अगर नियम ना हो, अगर रूल्स ना हो, तो हमारी लाइफ जो होगी वो बेकार हो जाएगी। सो इंपॉर्टेंट है हम एथिकल कल्चर बना पाते हैं, इसकी वजह से राइट एटीट्यूड बिहेवियर हम कर पाते हैं, और ये सारी चीजें, है ना, आप सब सीख भी रहे होंगे और आगे सीखते जाएंगे। बट उसमें ध्यान रखना होता है कंपनी के रिस्पेक्ट में कि कुछ कॉन्फिडेंशियलिटीज होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। वी मस्ट बी लॉयल टू द एम्प्लॉयर। इफ वी मस्ट लॉयल एम्प्लॉयर के लिए हम लॉयल रहेंगे तो हमें एम्प्लॉयर बहुत पसंद भी करेगा और हमें लाइफ में बहुत आगे तक ग्रो होने का मौका भी देगा, क्योंकि उससे उसका बिजनेस ग्रो करेगा और जितना वो ग्रो करेगा उतना हम ग्रो करेंगे। ये समझना जरूरी होता है। व्हाट शुड बी प्रोटेक्टेड, क्या चीज पुट करने की ध्यान रखती है जब भी आप कहीं काम करने जाते हो। वहां के ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं, इन्वेंशंस होती हैं, डिस्कवरीज होती हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, बिजनेस मेथड्स होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, मैकेनिज्म होते हैं, कंपोजिशंस, कस्टमर एंड क्लाइंट इंफॉर्मेशन। अगर आप अकाउंटेबल हैं, अगर आप ट्रस्टवर्दी हैं, तो ये सारी चीजें आप अपने आप ही कर लेंगे। सो इंपॉर्टेंट है उन बेसिक कोर वैल्यूज को अपनी लाइफ में लाना, उन 7 कोर वैल्यूज को, उन 8 पावर्स को अगर अपनी लाइफ में आपने इनकलकेट कर दिया तो आपके प्रोजेक्शंस में, आपके प्रोफेशन में, कहीं पर कोई भी जो सिचुएशंस लाइफ में आने वाली हैं या जो रूल्स आने वाले हैं वो रूल्स फॉलो करना आपकी हैबिट में होगा, विद इन, बिकॉज करेक्टर इज माई ओन, है ना। फिर रिडर्सल मैकेनिज्म होता है, ऑर्गेनाइजेशन कंप्लेंट प्रोसीजर होता है, जिसके अंदर अगर आप देखो तो लीगल इश्यूज एंड नॉन लीगल इश्यूज की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है। हमें समझना होता है वर्कर्स एंड कम्युनिटीज के बीच में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उनको हम कैसे पॉजिटिवली हैंडल कर सकें। इसका यानी कि रिडर्सल का मतलब होता है बेसिकली निवारण तंत्र कहते हैं इसको। हमेशा कारण लेकर के मत आइए, हमेशा सिचुएशंस को लेकर के मत आइए और ऐसे के पास में। यू मस्ट बी अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन, फाइंड द लीगल मेथड्स टू सॉल्व द सिचुएशन, जिसमें कि दोनों तरफ का फायदा हो, है ना, किसी का भी नुकसान ना हो। ये हमें समझना होता है। सो इस प्रोफेशनल एथिक्स इसके लिए होते हैं, इनके पर्पस को हमें समझना है, क्योंकि अगर कहीं पर ये एथिक्स हर्ट होंगे तो डेफिनेटली पूरी ऑर्गेनाइजेशन हर्ट होगी। तो अगर हमारे जो डिसीजंस हैं वो बहुत मैटर करते हैं, अगर उनके पीछे अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, है ना, हमारी बाउंड्रीज होंगी, हमारे रूल्स की बाउंड्रीज होंगी, हम खुद को एथिक्स के अंदर रखना जानते होंगे, तभी हम दूसरों को, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, हमारे एक्शंस, अगर हम खुद एथिकल होंगे, हम खुद प्योर प्रोफेशनल होंगे तो दूसरों को यही मैसेज जाएगा और वो हमें देखकर वैसा ही बन जाएंगे, क्योंकि हमारे वो करेंगे। एंड ये इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स होती है कि सेट आउट द मिनिमम ड्यूटीज ऑफ द लीगल प्रैक्टिशनर्स टुवर्ड्स हिज क्लाइंट, द कोर्ट एंड हिज कोर्ट, जो भी ये चीजें लीगल्स में आती हैं ये चीज आप जा सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच बिकॉज टाइम इज अप, टाइम हो चुका है। आई थिंक मैंने कंप्लीट किया, लेकिन मैं चाहता हूं अगर टाइम थोड़ा सा और परमिट किया जाए तो हम चाहते हैं कि आपके साथ में 2 मिनट का एक मेडिटेशन प्रोसेस किया जाए। वुड यू लाइक इट? Yes, sir. Please. मेडिटेशन करना चाहेंगे आप सब? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाइस, गुड, Yes, sir. ग्रेट। सो मैं पहले आपको एक बहुत छोटी सी चीज बताना चाहूंगा कि मेडिटेशन करने के लिए क्या है, व्हाट इज मेडिटेशन। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं मेडिटेशन को लेकर, कोई म्यूजिक चला देते हैं, कोई मंत्रास की चैंटिंग कर रहे होते हैं, है ना, कोई कुछ और बता रहे हैं, कोई हमें अलग अलग तरह के मेडिटेशन को बताया जाता है। ये सब ठीक है, लेकिन आपको चेक करना है कि वो मेडिटेशन है या रिलैक्सेशन टेक्निक है। पहली बात, मेडिटेशन का एक ही मतलब होता है, एम्पावर यू, एम्पावर यू।
मुझे मेरे माइंड को प्योरीफाई करना है एंड पावरफुल करना है। और वो कैसे होगा? माइंड के अंदर क्या चल रहा होता है? थॉट्स। तो अब क्या होता है, हमारे दो माइंड होते हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। तो मुझे ये समझना है कि कॉन्शियस माइंड क्या करता है, सबकॉन्शियस क्या करता है। आप कार चलाना जब सीखते हैं, मैट्रिक्स को थोड़ा समझना पड़ेगा, जब कार चलाना आप सीखते हैं तो क्या होता है, आपका पूरा ध्यान कार पर होता है, यू आर फुल्ली फोकस्ड ऑन कार। लेकिन कार अच्छी नहीं चल रही होती है, डर भी लग रहा होता है कहीं टकरा ना जाए, लगता है कि 5 चीजें 4 हाथ, 4 चीजों से कैसे मैनेज करेंगे, 2 पैर 2 हाथ और चीजें 5 हैं, कैसे मैनेज होंगी, कंफ्यूज। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे चलाते जाते हैं, कॉन्शियस एफर्ट डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, एक दिन वो सबकॉन्शियस चली जाती है। शुरू में जब मेरा पूरा कॉन्शियस माइंड काम कर रहा था, तब ना तो मुझसे कार अच्छी चल रही थी, मुझे डर भी लग रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं कैसे सीख पाऊंगा। लेकिन जब मैं उसकी प्रैक्टिस करता गया तो आज क्या होता है, हम कार हजारों किलोमीटर चला लेते हैं, फोन पे बात करते चला लेते हैं, घर का एड्रेस भी अपने आप याद रहता है और बिल्कुल 1% भी ध्यान नहीं होता है। इट मींस मेरी सफलता तभी बड़ी होगी जब मैं कॉन्शियस एफर्ट से उसे सबकॉन्शियस तक ले जाऊंगा। शुरू में तब तक वो मुझे टफ लगती रहेगी जब तक कॉन्शियस एफर्ट है, लेकिन अगर मैंने कॉन्शियस एफर्ट करना छोड़ दिया तो वो कभी भी इजी नहीं होगी। इसीलिए कहा गया है प्रैक्टिसेस मेक अस परफेक्ट। सो मेडिटेशन में भी आपको क्या काम करना है, मैं आपको एक मेडिटेशन सिखाऊंगा जो सबसे इजीएस्ट मेडिटेशन है, जो आप डेली कर सकते हैं। सबसे पहले आपको समझना है, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम अ प्योर बीइंग हु रन्स दिस बॉडी। मैं वो आत्मा हूं जो इस शरीर को चला रही है। आई एम अनलिमिटेड, आई एम नॉट लिमिटेड। मेरे बॉडी के ऑर्गन्स लिमिटेड है, ये आंखें लिमिटेड देख सकती हैं, ये कान लिमिटेड सुन सकते हैं, बट आई द सोल कैन थिंक अबाउट एनीथिंग एनीवेयर। अभी मैं आपसे बोलूं कि आप अपने मन को कहीं भी ले जाओ, दुनिया में जो भी आपने देखा है आप लेके जा सकते हो, आप लेके जा सकते हो। लेकिन आप सोचो कि आप अपनी बॉडी को वहां लेके जा सकते हो? नहीं। बॉडी हैव लिमिटेशंस बट माइंड डजंट। तो मुझे क्या करना है, और मेरे सारे डिसीजन किस आने वाले, माइंड से। तो मुझे अपने माइंड को एम्पावर करना है। तो आपको सबसे पहले आई एम अ बीइंग, आई एम अ प्योर पॉइंट ऑफ लाइट, अ कॉन्शियंट एनर्जी। सभी बिल्कुल सीधा बैठ करके, अगर आप डायरी पेन आपके पास है सो प्लीज डू इट, आप एक डायरी पेन लें। मैं आपको कुछ सेल्फ टॉक दूंगा, इसे हम सेल्फ टॉक मेडिटेशन कहते हैं। तो मैं आपको एक ऐसा मेडिटेशन कराने जा रहा हूं जो आप डेली कर सकते हैं और जिससे आप अपनी लाइफ के सभी एरियाज कवर करेंगे। तो मैं कुछ सेल्फ टॉक देता जाऊंगा एंड यू कैन राइट इट, बट कॉन्शियस होकर के। सबसे पहले आपको एक फील करना है, आई एम अ बीइंग सिटिंग इन द सेंटर ऑफ माय फॉरहेड। मैं अपने मस्तक के बीचों बीच बैठी हूं, यहां से ही मैं सब कंट्रोल कर रही हूं। आई एम लव, आई एम पीस, आई एम हैप्पीनेस, आई एम पावर, आई एम प्योरिटी, आई एम नॉलेज, आई एम ब्लिस। थैंक यू गॉड, आपने मुझे प्योर बनाया है, पावरफुल बनाया है। आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी ऑन दिस प्लेनेट, बिकॉज स्वयं जो भगवान है, जिसे हम ओशन ऑफ नॉलेज कहते हैं, वो मेरा पिता है। ही इज माई फादर, ही इज माई फादर, ही इज माई टीचर, जो मुझे हमेशा गाइड करता है। थैंक यू गॉड, आपने मुझे रैशनली, इमोशनली, इंट्यूटिवली, स्पिरिचुअली दुनिया में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बनाया है। थैंक यू गॉड, आपने मुझे संसार में हाईएस्ट कॉमन सेंस दिया है, आपने मुझे हाईएस्ट प्रेजेंस ऑफ माइंड दिया है, आपने मुझे ट्रांसपेरेंट मेमोरी दी है, आपने मुझे सभी वैल्यूज से, सभी पावर से भर दिया है। यू ऑलवेज विद मी, आप मुझे हमेशा डायरेक्शन देते हैं, आप सदा मेरे साथ रहते हैं। एंड आई नो, जब भगवान मेरे साथ है तो मेरे लिए डरने की कोई बात बचती नहीं है, बिकॉज कहा जाता है when I and God together then we are majority। अगर परमात्मा मेरे साथ है तो ये सारा संसार भी एक तरफ हो जाए तो भी मेरी जीत पक्की है।
5 पांडवों के साथ श्री कृष्ण, 100 कौरवों के साथ अक्षौहिणी सेना, लेकिन जीत 5 पांडवास की है। आई एम द बेस्ट, ऑनेस्ट, एक्टिव, अलर्ट, एक्यूरेट, डिसिप्लिन, डिटरमाइंड, डेडिकेटेड, फोकस्ड, हाईएस्ट, होलीएस्ट, लवेबल, केयरिंग पर्सन ऑन दिस प्लेनेट। थैंक यू गॉड, आपकी ब्लेसिंग से इस दुनिया में सभी मुझे प्यार करते हैं, सभी मुझे टाइम पर सहयोग देते हैं, कॉपरेट करते हैं। एंड आई लव एवरीवन, आई कॉपरेट टू एवरीवन। थैंक यू गॉड, आपने मुझे पावर टू फॉरगिव दिया है, पावर टू फॉरगेट दिया है। मैं बहुत आराम से सबकी गलतियां क्षमा कर देता हूं, मैं सबको माफ कर देता हूं। आई एम ब्लेस्ड, आई एम ऑनर्ड। थैंक यू गॉड, विद योर ब्लेसिंग्स आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन अचीव एनीथिंग। सब मुझसे खुश रहते हैं, मैं सबसे खुश रहता हूं। Everyone loves me, I love everyone. Everything is good, everything happens for the good. I know every situation is in my favor because I have guts to overcome any situation. Thank you God, you love me. Thank you God, you give me all the powers to do anything. Thank you God, अगर आप मेरे साथ हैं तो मेरे सभी रिश्ते सुंदर हैं, क्योंकि मेरा चरित्र महान है। मेरा जन्म दुनिया में जीतने के लिए हुआ है। आपने मुझे हर बात में जीतने की शक्ति दी है। थैंक यू गॉड, आपने मुझे करेजियस बनाया है, साहसी बनाया है, आपने मुझे निडर बनाया है, आपने मुझे महान बनाया है, आपने मुझे पवित्र बनाया है, आपने मुझे शुद्ध बनाया है। मेरा हृदय शुद्ध है, मेरा हृदय महान है, मेरे हृदय में सबके लिए प्रेम है। ये सारी दुनिया बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है, सब बहुत अच्छे हैं, सब मुझे प्यार करते हैं, मैं सबको प्यार करता हूं। मैं दुनिया में सबको खुशियां देने के लिए पैदा हुआ हूं। थैंक यू गॉड, आई लव यू गॉड, यू आर विद मी, एवरीथिंग पॉसिबल विद यू। आई एम अ विनर, आई एम अ विनर, आई एम अ विनर। थैंक यू गॉड, आपने मुझे मेरी जिंदगी में वो सब कुछ दे दिया जो मुझे चाहिए था। आपने मुझे सबसे पहले डिजर्विंग बनाया, फिर मेरी इच्छाओं को पूरा किया, जिसकी वजह से मैं आपके दिए हर वरदान को जस्टिफाई कर पाया। आई एम द बेस्ट, आई एम ऑनेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम ऑनेस्ट, आई एम मोस्ट एथिकल, हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी ऑन दिस अर्थ। आई ऑलवेज लीड माई एक्शंस थ्रू माई एक्शंस। सब कोई मेरे कर्मों को देकर, आई एम द मोस्ट इंस्पिरेशनल, इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी ऑन दिस प्लेनेट। I am the inspiration of purity. I am an inspiration of power. I am an inspiration of love. I am an inspiration of happiness. I am an inspiration of bliss. Thank you, God. I am a creator. You give me a lot of creativity. My all the activities are productive. Thank you, God. You makes me the most productive personality on this earth. Thank you, God. I love you, God. I am the best. I am the best. I am the best. लव यू ऑल। होप सो मैंने आप सबका टाइम सफल किया हो, और थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. At Amity University, we always strive for knowledge, values, and ethics. It indeed was an experience interacting with you. And your views in the field of professionalism, ethics, and values had indeed opened us to a newer vision towards life. The knowledge you have shared with us is unequivocal, and we will surely try to implement it going ahead in our life. I thank you again on behalf of all the students and faculty of AIAS for taking out your precious time for us. I also thank the IT Cell Amity University for making this virtual meeting possible. Finally, I'd sign off with a quote by William James. It is our attitude that at the beginning of a difficult task which makes us successful of the outcome. Thank you everyone, and have a good evening.